Assalamu alaikum, dear students. Hope you will be doing well. Now, this video is for class 7 and the subject is journal science. And in the previous classes, we have learned the first chapter, that is the digestive system. Now, today we are going to read the second chapter of our course, that is reproduction in plants. This is only lecture, you have to understand it. Now you have to open your book at page number 40 to 55. This chapter is from book page number 40 to 55 and the chapter name is reproduction in plants. This is the first video of June, that is, and the date is 3rd June 2021. Chapter number is 5. Now, reproduction. What is the meaning of reproduction? The name indicates re means dobara, again, and production means produce, to give identical individuals just like them. ठीक है, जो जब भी कोई भी चीज़ रिप्रोड्यूस हो अपनी तरह के individuals बनाए, that is called reproduction. Now the example is given here. You can see this is a flower. This is a brassica flower and it reproduced to give same type of brassica flower. All the plants and animals reproduce. जितने भी plants और animals हैं वो reproduce होते हैं. They reproduce to give their identical species. वो reproduce इसलिए होते हैं कि उनकी तरह की दोबारा से species बन जाएं. There are some examples. देखें, plants और animals जो हैं वो reproduce इसलिए होते हैं कि plants और animals कुछ अरसे में फिनिश हो जाते हैं, एक्सटेंड हो जाते हैं, तो उनकी जनरेशन जो है वो बिल्कुल ख़त्म ना हो, इस वजह से वो रिप्रोड्यूस होते हैं. जैसे कोई भी हम फ्रूट खाते हैं, एप्पल्स खाते हैं, गुआवा खाते हैं, तो उनकी जनरेशन जो है वो ख़त्म ना हो जाए, इसलिए नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये प्लांट्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं. There are some example. For example, honey bee reproduce to give honey bees. For example, you can see that this is honey bee. ठीक है, तो honey bee जो है ये reproduce हुई, reproduction इसने किया और दोबारा same type of honey bee जो है वो produce हुई. Next one is flies. फ्लाइज़ जो हमारे घर में मक्खियाँ होती हैं, ये देखें उसकी भी लाइफ साइकिल है, ये भी रिप्रोड्यूस होती है टू गिव हनी हाउस फ्लाई अगेन. Now these are horses. Horses and deers, they also reproduce to give their next generation. ये भी reproduce होते हैं ताकि इनकी next generation जो है वो आ सके, इनकी generation ख़त्म ना हो, extend ना हो, इस वजह से ये reproduce होते हैं. Reproduction is the process to produce offspring. Offspring means next generation. Reproduction क्या process है जिसमें offspring आते हैं, next generation आती है. रीज़न क्या है रिप्रोडक्शन की कि कोई चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती. Nothing lives forever. Life continues because all living things are able to produce copies. लाइफ जो है वो इस वजह से कंटिन्यू होती है क्योंकि सब जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो अपनी कॉपीज़ प्रोड्यूस करते हैं. जैसे हॉर्सेस हों, प्लांट्स एनिमल्स में हॉर्सेस, डंकीज़, और प्लांट्स में जैसे आप कुछ भी खाते हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो उनकी जब अगर नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगी तो हम लोगों का वो फ्रूट जो है हमें वो दोबारा से नहीं मिल सकेगा. इसलिए रिप्रोडक्शन इज़ सो इम्पोर्टेंट. Plant and animals grew older and finally died. They would not be able to reproduce. अगर plants और animals जो हैं वो reproduce ना हो तो क्या होगा, वो die कर ले, वो मर जाएंगे और दोबारा से पैदा नहीं होंगे. All the different kinds of plants and animals would be extinct. Extinct means end or finish. Only the species survives that reproduce. सिर्फ वो species रह जाती हैं जो कि reproduce करती है और जो species reproduce नहीं करेगी वो end हो जाएगी.
अ फ्रॉग एग्जाम्पल क्या है, अ फ्रॉग मे लिव फॉर फ्यू वीक्स और फ्यू ईयर्स बट देयर स्पीशीज रिप्रोड्यूस and some of their young grew up and also reproduced, then the species will. For example, a frog may live for few weeks or few years, but their species reproduce and some of their young grew up and also reproduced. Their species will continue to survive on earth. जैसे कि आप लोग देखें फ्रॉग्स हैं, तो फ्रॉग्स जो हैं वो कंटिन्यू टू सर्वाइव क्यों करती हैं, वो ज़िंदा क्यों रह सकती है, क्योंकि उनकी स्पीशीज़ जो हैं, फ्रॉग मीन्स मेंढक, उनकी स्पीशीज़ जो हैं वो बार बार रिप्रोड्यूस हो रही है। अगर उनकी स्पीशीज़ दोबारा से रिप्रोड्यूस ना हो तो क्या होगा, ज़मीन पर मेंढक ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि डायनासोर्स हैं, डायनासोर्स जो हैं वो अब ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि उनकी स्पीशीज़ जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं हो रही। अच्छा, नाउ नाउ वी विल रीड अबाउट द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। ठीक है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज सेपल। सेपल आर ग्रीन लीव लाइक स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट द फिलामेंट इन द बर्ड। ठीक है, अब देखें, दीज आर द सेपल्स, यू कैन सी दीज आर द सेपल्स, और सेपल्स के अंदर जो है फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दीज आर द सेपल्स, ये सेपल्स हैं और इनके अंदर फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और इसका क्या काम है कि ये फिलामेंट को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट वन आर पेटल। पेटल आर ब्राइटली कलर्ड पार्ट। पेटल्स क्या हैं, वो ब्राइटली कलर्ड पार्ट हैं। ये तो आपको पहले से पता होगा कि जो भी कलर पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड पेटल। अब देखिए, दीज आर द कलर पार्ट, तो ये क्या है, ये पेटल्स हैं। फिर नेक्स्ट है द स्टेमन आर मेल पार्ट। स्टेमन इसमें क्या है, दिस इज स्टेमन। स्टेमन के मज़ीद टू पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। दिस इज़ फिलामेंट एंड दिस इज़ एंथर। ठीक है, तो ये क्या है, मेल पार्ट है। एंड द अदर वन इज कार्पल। द कार्पल आर फीमेल पार्ट। दिस इज कार्पल। Now this is carpal and this is female part and it consists of three parts: stigma, style and ovary. आज के लेक्चर के लिए आप लोगों ने ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर बहुत याद करने हैं ताकि आपको आगे का लेक्चर समझ आ सके। आप लोगों ने अपनी बुक्स ओपन करनी है और 42 और 41 पेज जो है वो स्टडी करना है। ठीक है, आपने क्या पढ़ा, सेपल्स, फिर यहाँ पे पेटल्स जो हैं कलर्ड पार्ट हैं। सेपल क्या करते हैं, सेपल जो है वो फिलामेंट को सेव करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। स्टेमन मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। और कार्पल जो हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, तो ये पार्ट्स आज आप लोगों ने याद करने हैं, अपनी बुक को स्टडी करना है। अब हम लोग आपकी बुक से स्टडी करते हैं। Reproduction. Nothing lives forever, and yet the life continues because all the things are able to produce themselves. If the living things did not reproduce themselves, then before long they would be none. As each plant and animals grew older एंड फाइनली डाइड। अगर लिविंग थिंग्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस ना होते तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन ना प्रोड्यूस होती और वो ख़त्म हो जाते दुनिया से। इट वॉट नॉट बी रिप्लेस्ड। इवेंचुअली डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वुड डाई आउट, दे वुड बिकम एक्सटिंक्ट। वो क्या होते, वो ख़त्म हो जाते और वो दोबारा से ना बन सकते। ठीक है, only those kind of animals and species would survive that reproduce. A house mouse, dragonfly, fox, frog, buttercup, or daisy plant may live for long weeks or few years, but as long as some members of each species reproduce and some of their young grew up and also reproduce, then species will continue to survive on earth.
ठीक है। जब तक ये रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे उनकी दोबारा से रिप्रोडक्शन नहीं होगी, वो अर्थ पे सरवाइव नहीं कर सकेंगे। थैंक यू, दिस वाज द लेक्चर फॉर टुडे, दिस वाज इनफ फॉर टुडे। टेक केयर। और आप लोग ज़रूर रीड आउट करें और इस लेक्चर को गौर से सुने।